السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کے ان حالات میں جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، کورونا کی وبا، وائرس، اس کے نتیجے میں لاک ڈاؤن اور اس کے اثرات سے بچنے کے لیے بطور احتیاطی تدابیر اور تحفظ گھروں میں قید ہو جانا، ان حالات میں جہاں بہت سارے مسائل، بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اس میں سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ ملک و وطن میں کئی ہزار لوگ اس وائرس میں مبتلا ہیں، کم و بیش ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی وفات ہو چکی ہے، موت ہو چکی ہے۔ ان وفات پانے والوں کا ایک مسئلہ اس وقت درپیش ہو رہا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کی وفات ہو جائے تو وائرس کی وجہ سے اس کے قریب جانا، اسے چھونا، ہاتھ لگانا، اٹھانا، مس کرنا، یہ ساری چیزیں وبا کی وجہ سے خطرناک ہیں کہ کہیں وائرس پھیل نہ جائے، ادھر سے ادھر بیماری متعدی نہ ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بیماری متعدی ہے اور یہ چیز اب پوشیدہ نہیں رہ گئی ہے، ساری دنیا میں آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ بیماری متعدی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے متعدی بنا دیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت رکھی ہے کہ ایک دوسرے کے قریب آنے اور ایک دوسرے سے ملنے جلنے، اکٹھا ہونے سے اس بیماری کے پھیلنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے موجودہ صورتحال میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی وفات ہو جائے تو کیسے اسے دفن کیا جائے، بلکہ اس سے پہلے کیسے اسے کفنایا جائے، جنازے کی نماز پڑھی جائے، کیسے اسے اٹھایا جائے، کیسے اسے قبرستان وغیرہ لے جایا جائے، یہ سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ان سب سے پہلے غسل دینے کا مسئلہ پیش آتا ہے، غسل کیسے دیا جائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کے ماننے والے ہیں جس میں قیامت تک آنے والے سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ کبھی کوئی مسئلہ ایسا پیدا نہیں ہو سکتا جس کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو یہ مسئلہ پیش آیا ہے، اس کا بھی حل، اس کا بھی جواب الحمدللہ موجود ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے اس حوالے سے یہ جان لینا ضروری ہے کہ دیکھیں، وفات پانے والے کو غسل دینا ضروری ہے، واجب ہے، اسے کفن پہنانا واجب ہے۔ اسی طرح سے جنازے کی نماز پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی چند مسلمان بھی اگر جنازے کی نماز کسی مسلمان کی پڑھ لیتے ہیں تو سب لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی وہ نماز اور سبھی لوگ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر پوری آبادی میں کوئی بھی شخص ایک مسلمان کی وفات پر جنازے کی نماز نہ پڑھے تو سارے کے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گنہگار ہوں گے اور ان کی گرفت ہوگی۔ فرض کفایہ ہے، وہ چند لوگ بھی پڑھ لیں تو کافی ہے۔ سوالات یہ پیدا ہو رہے ہیں، یہ کیے جا رہے ہیں کہ فلاں کی وفات ہو گئی ہے، کورونا وائرس کی وجہ سے وفات ہوئی ہے، اور ایسی صورت میں اب اس کے قریب جانا، اسے چھونا اٹھانا مشکل ہے، بھلا بتایا جائے کہ کیسے اسے غسل دیا جائے، کیسے اسے کفنایا جائے، کیسے اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے اور کیسے اس کی تدفین عمل میں آئے۔ دیکھیں، جب مشکلات بڑھ جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اس کا حل آ جاتا ہے اور آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے موقع پر انہیں غسل دینے والیوں سے فرمایا تھا، اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك ان رأيتن ذلك، اسے 3 مرتبہ نہلاؤ، 5 مرتبہ نہلاؤ، اس سے زیادہ کی ضرورت اگر محسوس کرو تو اس سے زیادہ بھی مرتبہ نہلاؤ، پانی ڈالو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل دینے کے بارے میں حکم دیا، غسل دو، اغسلنها، اسے نہلاؤ، غسل دو۔ غسل دینا واجب ہے، غسل دینا ہی چاہیے۔
इसी तरीके से कफन पहनाने के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था, एक शख्स की वफात हुई, ऊँटनी से गिर पड़ा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कफिनुहु फी सौबैहि, इसे इसके 2 कपड़ों में कफना दो। मेरे भाइयों, पता ये चला कि कफनाना और गुस्ल देना वगैरह वाजिब है, जनाजे की नमाज किफाया है, फर्ज किफाया है। इसलिए अगर आज कोरोना की वजह से ये चीज तय हो हतमी तौर पर कि वाकई ये मौत कोरोना की वजह से हुई है और ये मुतअद्दी मरज है, बीमारी है, वायरस है, और इसकी बुनियाद पर उसे छूना, उसके करीब जाना, उसे हाथ लगाना लोगों के लिए खतरनाक है और बीमारी फैल सकती है, एक से दूसरे को तीसरे को लग सकती है। ऐसी सूरत में हमें चाहिए कि हम नहलाने का वो तरीका इस्तेमाल करें जो तरीका ऐसा हो कि नहलाना भी हो जाए और लोग उस बीमारी के असरात से महफूज रह सकें। मिसाल के तौर पर उसे पानी बहाया जाए उसके ऊपर, यूं ही उसे उस चारपाई पर लिटाकर जिस पर गुस्ल दिया जाता है उसके जिस्म पर यूं ही कपड़ों के साथ पानी बहाया जाए, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा पानी बहाया जाए और यहां तक कि इत्मीनान कर लिया जाए कि अगर कुछ जाहिरी गंदगी वगैरह होगी तो साफ हो गई होगी और पूरे जिस्म पर पानी लग गया होगा, पहुंच गया होगा, इतना काफी है। और उसके बाद और ये काम करने के लिए भी जो मुर्दे को हाथ लगाना वगैरह पड़ता है, उसके लिए आदमी को चाहिए कि तहफ़्फ़ुज़ात का इस्तेमाल करे। मिसाल के तौर पर ग्लव्स वगैरह इस्तेमाल करे या और भी कुछ ऐसे वसाइल जो मैसर हों उसका इस्तेमाल करके हाथों में पहन करके इंसान उसको उठाए और उसे जरूरत के मुताबिक इधर उधर करे। ये तमाम चीजें तहफ़्फ़ुज़ और एहतियात की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हुए उसके जिस्म पर यूं ही पाइप के जरिए से या बर्तनों के जरिए से पानी बहा दिया जाए, इतना काफी है। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद, चंद मिनटों के बाद, यहां तक कि पानी जो है वो बह जाए, निकल जाए और उसके बाद उसे उठाया जाए उन तमाम एहतियातात के साथ, उन ग्लव्स वगैरह को पहन करके और दीगर एहतियातात के साथ उसे एक बड़ी चादर में पर उतार दिया जाए, लिटा दिया जाए और उसी चादर में उसे लपेट दिया जाए। ये उसके कफन के लिए काफी है, उसके कपड़ों समेत। इसी तरीके से उसे पूरे एहतियात के साथ बचते हुए उसे उठाया जाए, नाश पर रखा जाए। और अगर मिसाल के तौर पर हुकूमत की जो एहतियाती तौर पर पाबंदियां आयद की गई हैं कि चंद ही लोग, 2 लोग, 4 लोग ही किसी की तदफीन में, किसी की जनाजे की नमाज वगैरह में जा सकते हैं, उसका भी पूरा पालन किया जाए, कोई हर्ज की बात नहीं है। ये एहतियातात ऐसे भी शरीयत के अंदर मतलूब हैं और हुकूमत की जो पाबंदियां हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की मसलहत में है, हम सब के हक में है और इसमें कोई आयब की बात नहीं, कोई आर की बात नहीं और किसी तरह का इसमें कोई इंसान के लिए सोचने का ऐसा भी मौका नहीं है कि इंसान इसमें ये समझे कि हम किसी तरह का तनाजुल अख्तियार करें। नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तालीमात का हिस्सा है। तो उसे चंद लोग उठा करके नाश पर रखें और अगर पाबंदी हो कि 2 ही 3 लोग जा सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है, उसे उस पर नाश पर उठा करके 4 लोग लेकर के जाएं और कब्रिस्तान में जनाजे की नमाज वही चंद लोग, 2 लोग, 3 लोग ही पढ़ करके उसे दफना दें। या अगर मिसाल के तौर पर एम्बुलेंस वगैरह का इंतजाम हो कि इसकी नौबत ही ना आए कि लोगों को उठा करके ले जाना पड़ेगा, तो भी कोई हरज की बात नहीं है, उसके जरिए से कब्रिस्तान पहुंचाया जाए और उस पर वो 2 लोग, 3 लोग जिनकी इजाजत हो वो जनाजे की नमाज पढ़ लें और फिर उन तमाम एहतियातात को मलहूज रखते हुए उसी कब्र में उतार करके उसकी तदफीन कर लें। इस तरीके से हम इन हालात में इस तरह के अमवात जो वायरस की बुनियाद पर वफात पाते हैं उनकी जनाजे की उन्हें गुस्ल देना, जनाजे की नमाज पढ़ना, कफनाना, जनाजे की नमाज पढ़ना और ऐसे ही तदफीन वगैरह करना, ये सारे काम हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला अंजाम दे सकते हैं। इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में, अल्लाह के नबी के फरमान में ये तालीम हमें दी गई है कि अल्लाह तबारक व तआला से उतना डरो जितना तुम्हारे बस में। इत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, इत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जितना तुम्हारे बस में है, तुमसे हो सकता है उतना अल्लाह से डरो। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह तबारक व तआला किसी भी नफ्स को, किसी भी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा का मुकल्लफ नहीं करता। जाहिर है कि हम तमाम तर हालात से वाकिफ हैं, ज़ुरूफ से वाकिफ हैं और इन तमाम हालात में हमारे लिए इतना ही मुमकिन है, इससे ज्यादा कि हम मुकल्लफ अल्लाह की तरफ से नहीं बनाए जा सकते, न इससे ज्यादा हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला से डरना मुमकिन है। इसलिए ये तरीका है, बिला किसी तामुल के, बिला किसी एतराज के ये काम कर लेना चाहिए। 2 बातें जहन में रखनी चाहिए मजीद। देखिए, अगर 1-2 लोग ही जनाजे की नमाज पढ़ सके हैं, जबकि जाहिर है कि बहुत सारे लोग जनाजे की नमाज में शिरकत करते हैं, वो नहीं कर सके हैं, तो कोई हरज की बात नहीं है। वो लोग गायबाना जनाजे की नमाज पढ़ लें, जैसा कि नजाशी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ सहाबे किराम ने 2-3 चंद सफों में खड़े होकर के जनाजे की नमाज पढ़ी थी। तो जनाजे गायबाना पढ़ ली जाए।
वैसे भी जो 2-3 लोगों ने जनाजे की नमाज पढ़ी है उतना भी काफी है, लेकिन और भी लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक नाजुक सूरत हाल की वजह से लोग जनाजे की नमाज नहीं पढ़ सके हैं। दूसरी चीज ये ध्यान में रखनी चाहिए कि देखिए, दफनाना चाहिए, दफनाने का हुक्म दिया है, दफनाने का हुक्म है दीन के अंदर, शरीयत के अंदर इस्लामी तालीमात का हिस्सा है कि मुर्दे के साथ तलाउब और खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए दफनाना चाहिए। अभी खबरें सुनने में आई हैं, सभी लोग आप लोग वाकिफ होंगे मेरे भाइयों के बाज हमारे मुसलमान भाइयों ही ने नादानी करते हुए, नासमझी करते हुए बिला वजह शिद्दत अपनाई और एक मुसलमान भाई को कब्रिस्तान में दफन करने से रोक दिया और उस पर बजिद हो गए, यहां तक कि नौबत ये आ गई कि उसे आग के हवाले करना पड़ा। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की तालीमात के सरासर खिलाफ है। हमें दफन करने की तालीम दी गई है, हमें दफन करना है। आप सोचिए कि एक मुसलमान को जला देना, उसे आग के हवाले कर देना, ये किस कदर जुर्म है। ये वो मुसलमान जिसकी इस्लाम और ईमान की वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि वो जैसे जिंदगी में मुहतरम था, मुकर्रम था, ऐसे ही मरने के बाद भी मुहतरम है, मुकर्रम है। भला उसके साथ कैसे ये सलूक किया जा सकता है कि उसे जला दिया जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैयत की हड्डियां न तोड़ो, मैयत की हड्डियां न तोड़ो, यानी ये सब नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसे वो जिंदगी में मुहतरम था ऐसे मरने के बाद भी मुहतरम है। इसलिए ये बहुत बड़ा जुर्म होगा, बहुत बड़ी गलती होगी और बहुत बड़ी भूल होगी। किसी भी बुनियाद पर आदमी किसी भी हैसियत से बात करना चाहता हो, बहरहाल ये उज़्र अल्लाह तबारक व तआला की किताब और नबी की सुन्नत में नाकाबिल माफी है, इससे पूरे तौर पर बचना जरूरी है। दफनाया जाए उन तमाम तर एहतियातात के साथ, उन तमाम तर पाबंदियों की रियायत करते हुए जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें दी गई हैं, या हमारे मुल्क और वतन के जिम्मेदारान और मेडिकल डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो तालीमात दी जा रही हैं उनको बरूए-कार लाते हुए। इसलिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस वबा से बचने की तौफीक अता फरमाए और इन तमाम हालात में तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात की तौफीक अता फरमाए और अपने मुर्दों के साथ गुस्ल देने, कफनाने, जनाजे की नमाज पढ़ने और दफनाने में ये तरीका अख्तियार किया जाए। अल्लाह हम सबको अपने दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।